Page 268. Let's start with sum number 10. Deep, Jyoti, Geeta. Let me finish that, and then whatever was the pending part, we'll do that. ठीक है? यहाँ पर जरा ध्यान. Deep, Jyoti, and Geeta. They are the partners sharing profit and loss in their capital ratio. The balance sheet of the firm as on 31/3 is as under. Capital account of Deep, Jyoti, Geeta. Then we have general reserve, creditors and provident fund. Whereas on the asset side we have goodwill, land building, trademark, stock, debtors. उसमें से bad debt reserve minus करा and then bank. Jyoti retired on the above date. Partners decided that new profit and loss ratio कितना है Deep and Geeta का? 1:1. And goodwill of the firm is valued at 70,000. तो वो गुडविल की हम एंट्री लिख लेंगे. बैड डेट रिजर्व को टिक कर लो. देन स्टॉक को टिक कर लेंगे. ट्रेडमार्क को टिक करो. देन प्रोविडेंट फंड को टिक करो. एंड द लास्ट एडजस्टमेंट इज अगेन इंपॉर्टेंट. टोटल कैपिटल की कुछ बात हो रही है, वो हम कर लेंगे. अब देखो, टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म इज टू बी केप्ट एज टोटल कैपिटल ऑफ द ओल्ड फर्म. Now Deep and Geeta will maintain this capital in their new profit and loss sharing ratio, and the purpose for this, underline karo, the difference will be transferred to their, underline, the difference will be transferred to their current account. But what will be our first working? Let's start. Give the heading. Working note number 1. Working note number 1. Calculation of gain ratio. Calculation of gain ratio. उसमें कौन कौन है? दीप, ज्योति and Geeta. But what's the old ratio now? They are saying the old ratio in their capital. The old ratio is in their capital वाला ratio. The old ratio is in the capital ratio. तो पहले मैंने capital लिख दिया, फिर ये जीरो सारे अगर मैं हटा दूं, so 10:15:10 ऐसा बैठ रहा है ना बेटा? 10:15:10. Yeah, it is 2:3:2. That is 2/7, 3/7 and 2/7. Can I say that is how I'll get my old ratio? 2:3:2. 2 + 3 5, 5 + 2 7. उससे हमने डिवाइड कर दिया. नवा रेशियो क्या बोला है? कौन रिटायर हो रहा है? Can I say ज्योति is getting retired? So दीप और गीता ने मिलकर नक्की क्या करा कि what will be that new ratio? 1:1, which is 1/2 and 1/2. And let's find the gain ratio. बेटा gain ratio दीप का होगा क्या? New ratio minus old ratio. It's the new ratio minus old ratio. So 1/2 minus 2/7. So बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई अगर हम करें, so can I say that's 3/14. So gain ratio अगर मैं फाइंड करूं तो that's 3/14, 3/14, which I call it as 3:3, which is again I can say 1:1. 3:3, which I again say it's 1:1. बेटा दीप का अगर 3/14 है तो गीता का भी बेटा वही है ना, 1/2 minus 2/7. तो आंसर वही आता, इसलिए दोबारा नहीं करा. समझ में आ रहा है? और अगर तुम स्कॉलर होते तो ये भी मुझसे नहीं करवाते, बिकॉज दीप और ज्योति का देखो पुराना क्या है? 2 which I can say 1/1. New is also 1/1. So gain will also be
जब अगर ओल्ड सेम है, न्यू सेम है, तो गेन हैज टू बी द सेम। बनाओ, कितने कॉलम्स बनेंगे? कितने कॉलम्स बनेंगे? 4। कौन कौन से 4? रिवैल्यूएशन अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट, कैश बैंक, पार्टनर्स कैपिटल અને बैलेंस शीट। But is the format done? Can we start with the sum? But is the format done? Can we start with the sum? स्टार्ट करूं? बेटा स्टार्ट करूं? लेट्स बिगिन। लेट्स बिगिन। बेटा कैपिटल अकाउंट ऑफ दीप, ज्योति एंड गीता, where will it go? Partners capital, credit side. By balance brought forward, दीप में 1 लाख, ज्योति में 150 and गीता में again it is 1 lakh. बड़ा जनरल रिजर्व कहाँ जाएगा? जनरल रिजर्व क्या से पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे हम। बेटा उसको डिस्ट्रीब्यूट करने का रेशियो क्या था? 2:3:2, 2:3:2। सो बेटा 28,000 को 2:3:2 में करो। 18,000, 8,000, 12,000, 8,000, 8,000, 12,000 और 8,000। बेटा क्रेडिटर्स का क्या करूं? क्रेडिटर्स
Can I say that will be showing it on the liability side? Is there any adjustment in that? No. Provident fund કેટલા છે? 32,000. Provident fund is 32,000. Again, that too will write it in the inner column. बेटा asset side goodwill है, क्या करूं उस goodwill का? पार्टनर्स में हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे. So 2 goodwill 4,000, 4,000, 6,000 and 4,000. But land and building, do we have any adjustment? Okay. So land and building 2,90,000 outer column. Trademark? Yes. Trademark is 60,000. We write it in the inner column. Stock. But a 50. Do we have any adjustment? Yes. Okay. Stock 50,000 in the inner column. Debtors. Yes, we do have adjustment in that. कितनी amount है debtors की? 40,000. Next, cash and bank will go to balance brought forward 22,000. To balance brought forward 22,000. But I need out. Let's start the next one. पहला जरा एडजस्टमेंट जरा देखो. नया प्रॉफिट एंड लॉस 1:1. क्या से वो हमने लिख लिया? नया प्रॉफिट एंड लॉस इज 1:1. क्या हमने वो देख लिया? प्राउड ऑफ यू. पची गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट हाउ मच? 70,000. Goodwill of the firm is valued at. Now, what is the purpose of giving this information? Goodwill 70,000. What's the reason? Can I say we can find out the share of retiring partner? And then who is going to pay to this retiring partner? The continuing partner. But what's the entry? Continuing partner to? Continuing partner to? Can I say you will do this working on your own and write the entry also? Yes. I'm giving you 2 minutes. I'm not going to do this. अब तुम्हें ये आना चाहिए. I'm not going to do this. Goodwill total is 70,000. Total goodwill is 70,000. But anyone ready with the entry? Anybody ready with the entry? निधि, आपने एंट्री लिखी? बताएंगे? पार्टनर्स कैपिटल में डेबिट साइड. एंट्री बताओ. लेजर पोस्टिंग नहीं, जर्नल एंट्री. दीप कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गीता कैपिटल अकाउंट टू ज्योति कैपिटल अकाउंट. दीप गीता टू ज्योति. अमाउंट कितनी आ रही है? गेन रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो दीप और गीता में 15,000 और ज्योति में 30. ज्योति में 30,000. बहुत बढ़िया. जरा यहाँ ध्यान, जिनसे ये वर्किंग नहीं हो रही है, कॉपी करने वालों. टोटल गुडविल था 70,000. उसमें से ज्योति's शेयर तो 70,000 into 3/7 that comes to 30,000. मतलब हमें ज्योति को देने कितने हैं? 30,000.
अब ये ज्योति को देगा कौन 30,000? दीप एंड सो दीप कैपिटल अकाउंट डेबिट, गीता कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ज्योतिष कैपिटल 15,000 एंड 30,000। बेटा इसका लेजर पोस्टिंग कौन बताएगा? लेजर पोस्टिंग युति, लेजर पोस्टिंग दीप गीता टू ज्योति, पार्टनर्स कैपिटल में डेबिट साइड कहां लिखूं? टू ज्योतिष कैपिटल, बहुत बढ़िया। फिर दीप में 15, गीता में 15, बहुत बढ़िया। फिर बाय दीप कैपिटल बाय ज्योति, अरे बाय गीता, और अमाउंट ज्योति में लिखेंगे। बेटा कितने लोगों ने ये कर लिया था मेरे करने से पहले? तो शर्म करो, कम झूठ बोला करो। लेक्चर पोस्टिंग अभी भी ऐसा कोई है जिससे ये हो नहीं रही है? अगर अभी भी ये नहीं हो रहा है ना बेटा, द टाइम हैज कम, छोड़ देना। और कुछ नहीं हो सकता है, अब कुछ नहीं हो सकता है। यू जस्ट नीड टू लीव दैट एडजस्टमेंट। गुडविल अवेट नेक्स्ट। नेक्स्ट वाला देखो, बहुत इजी। बैड डेट रिजर्व, बैड डेट रिजर्व इज टू बी रिड्यूस्ड अप टू, इट इज टू बी रिड्यूस्ड अप टू 10%। सो बेटा डेटर है 40,000, तो उसका 10% निकालेंगे तो बीडीआर आएगा कितना? ऑलरेडी कितना है? ऑलरेडी कितना है? 6,000 है। तो 6,000 से मेरे को कर कितना देना है? 4,000। तो व्हाट एम आई सपोज्ड टू डू? सो बीडीआर बेटा 6,000 में से 2,000 जाने दो, बिकॉज आई वॉन्ट टू कीप इट अप टू 10%. So outer column it will be 36,000. Outer column it will be 36,000. Now better use your common sense. From BDR 6,000 to it came to 4. मतलब BDR अगर कम हो रहा है तो it's my BDR बढ़ेगा तो कितनी अमाउंट है? It's 4,000. ओए क्या कर रहे हो यार संडे? It's 2,000. BDR कितना हैगा? 2,000. मैं कुछ भी लिख रहा हूँ, तुम भी लिख ले रहे हो ऐसे ना चले। बेटा थर्ड एडजस्टमेंट, come on. Tell me what am I supposed to do? Goods, stock is shown. The stock is shown in the books 25% more than its cost. जरा चेक करो क्या लिखा है? The stock is shown in the books 25% more than its cost. I want to record it at its which price? I want to record it at which price? मतलब ये जो स्टॉक 50,000 हमने बताया है, can I say we have shown it at a higher price? We have shown it at a, can I say we need to show it at its original cost? We need to show it at its, but beta what's the original cost? Do you know? Do you know what's the original cost? So give the heading working note number 3. गुडविल का सेकंड वर्किंग था ना, जो तुमने करा ही नहीं, क्या बोलते हो? करा स्कॉलर। वर्किंग नोट नंबर 3, कैलकुलेशन ऑफ, क्या लिखेंगे? कैलकुलेशन ऑफ ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ स्टॉक। कैलकुलेशन ऑफ ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ स्टॉक। बड़ा ओरिजिनल कॉस्ट है कितना? है ओरिजिनल कॉस्ट है कितना? ऐसा हमें अज्यूम करना है। नल्ला 50 कौन था? अरे उसके पापा आज मिलने आने वाले, टेंशन नहीं।
let original cost be equal to how much? 100. ऐसा हम assume कर रहे हैं. Assume let original cost be equal to कितना ज्यादा करके बताया है? So 25% अगर मैं निकालूं, so can I say 125? That's my overvalued amount. 125 is my overvalued amount. And can I say बैलेंस शीट में हमने ये ओवरवैल्यू ही करके बताया है ना, तो ऐसा मैं लिख सकता हूँ 125 के सामने अगर 50,000 है तो 100 के लिए कितना? 125 के लिए 50,000 है तो 100 के लिए क्या कर क्या रहे हो? संडे है. इंटू 100 डिवाइड बाई 125 आएगा. क्या तुम लोग कुछ भी लिख रहे हो? अरे लिख रहा हूँ यार, जीरो में लिख रहा हूँ, इधर करेक्शन कर रहा था. ये मेथी क्यों मार रहे हो यार? एक तो गलत गलत जवाब देते रहते हो मेरे को. 50,000 इंटू 125 कर दो. मैं लिख रहा था 40 यार. बड़ा 50 से कितने हो गए? 40. प्रॉफिट हुआ कि लॉस? प्रॉफिट हुआ कि लॉस? कितने का? या 10,000. बेटा ये लॉस कहां जाएगा? रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड 10,000. रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड 10,000. बेटा कुछ भी समझ में आ रहा है? 3 एडजस्टमेंट करे, पहला गुडविल, फिर बीडीआर, फिर ये स्टॉक. समझ में आ रहा है? देन फोर्थ वाला एडजस्टमेंट, जरा यहां ध्यान. फोर्थ वाला एडजस्टमेंट मेरे को है ना फ्लैशबैक में फाइनल अकाउंट्स की चैप्टर में लेके जाता है, और हमको वो फ्लैशबैक में फाइनल अकाउंट्स तो कुछ याद नहीं आता है. लेकिन ऐसा धुंधला धुंधला ट्राई करो. लीजहोल्ड बिल्डिंग में कुछ ऐसी कहानी होती थी. लीजहोल्ड बिल्डिंग में कि हमने 5 साल के लिए भाड़े पे हमने बिल्डिंग ले लिया. फिर एडजस्टमेंट में वो कुछ नहीं लिखते थे, वो खाली ब्रैकेट में लिखते थे हिडन वाले एडजस्टमेंट कि वी हैव टेकन इट फॉर 5 years, वी हैव टेकन इट फॉर 10 years. एंड कहना से हम वो लीजहोल्ड बिल्डिंग में थे 1 year का लीज माइनस किया करते थे. सेम यहां पर भी एक्टिंग ही करनी है. ट्रेडमार्क में जरा चेक करो, ट्रेडमार्क में जरा चेक करो. 60,000 है, and that 60,000 is for how many years? Now they are saying that for each and every year you write off that amount of trademark. If 60,000 is for 6 years, can I say after completing 1 year, 1 साल का ट्रेडमार्क वो राइट ऑफ हो जाएगा. सो 1 साल का कितनी अमाउंट आएगी? 1 साल का कितना आएगा? सो जैसे ही 1 साल खत्म होगा, 1 year is over, can I say I need to write off that amount of 1 year? Yes or no? उसकी वर्किंग कराओगे चले? वर्किंग कराओगे चले? सो कितना यहाँ से माइनस करने का? सो लिखो यहाँ पर लेस रिवैल्यूएशन, और ऐसा ब्रैकेट में लिख दो 60,000 डिवाइड बाय 6, ताकि घर जाके आफ्टर 2-3 months विल कम टू नो कि ये किया कैसे था. इन सर दिवाली वेकेशन विल ओपन द बुक्स, क्योंकि फर्स्ट टर्म खराब जाएगी, उसके बाद तो टेंशन आएगा. तो 60,000 डिवाइड बाय 6 करेंगे तो 10,000 राइट ऑफ करना है. बेटा सेकेंड इफेक्ट कहां जाएगी? रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड ट्रेडमार्क हाउ मच? 10,000. The trademark is how much? 10,000. बेटा प्रोविडेंट फंड की लायबिलिटी कितनी हो गई? प्रोविडेंट फंड की लायबिलिटी 35 है. कितनी टोटल? 32. 32 से कितनी हो गई? मतलब क्या? मतलब क्या? कहना से 3,000 से बढ़ रही है. So it will be 35,000.
सो बेटा रिवैल्यूएशन के कहा, बेटा लायबिलिटी बढ़ी, इट्स अ लॉस. सो रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड 3000. बेटा लास्ट वाला एडजस्टमेंट दीप और गीता ने अभी मिलके नक्की करा कि उनका टोटल कैपिटल जितना पुराने फॉर्म में था नए फॉर्म में भी टोटल कैपिटल उतना ही रहेगा. तो वो हम टोटल कैपिटल की वर्किंग एट द एंड कर रहे हैं. सबसे पहले अभी किसको रिटायरमेंट दे दो, ज्योति को पहले रिटायरमेंट दे दो. उनका कितना फाइनल अमाउंट आता है वो हम सब डिसाइड कर लेते हैं. અને એના પછી લાસ્ટ એડજસ્ટમેન્ટ પતાઈએ. જરા મને જ્યોતિની અમાઉન્ટ ફાઇન્ડ આઉટ કરવા માટે સૌથી પહેલા શું કરવાનું, रिवैल्यूएशन अकाउंट मेरे को क्लोज करना है 23,000. એમાં से 2,000 આપણે अगर माइनस करिए सो 21,000 आएगा. सो 21,000 जो आया है वो है मेरा रिवैल्यूएशन का लॉस, जो किसके बीच में जाएगा, दीप, ज्योति एंड गीता. Can I say that too? It will be in the old ratio 2:3:2. कितना? 6,000, 9,000, 6,000, 6,000, 9,000 and 6,000. बेटा ये रिवैल्यूएशन का लॉस कहाँ जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल में डेबिट साइड 6,000, 9,000 અને 6,000. અને अब बेटा जरा ज्योति का टोटलिंग कर लेंगे. चलो ज्योति का टोटलिंग 1,92,000, 1,92,000 એમાંથી 15 ગયા 1,77,000. बेटा ये आया क्या, 1,77,000 आया क्या? Can I say the amount which is payable to, the amount which is payable to at the time of her retirement, इतना अमाउंट हमको पे करना है. अब जरा चेक करो, do we have that much cash? So definitely we'll keep this amount as, we'll keep this amount as. So यहाँ पर लिखेंगे to Jyoti's loan. बेटा where will I show this loan? Liabilities. बहुत बढ़िया. So Jyoti's loan 1,77,000. Jyoti's loan will be 1,77,000. And now beta can we go to the last adjustment? Beta read it all of you. बहुत easy है, last adjustment है बहुत easy. दीप और गीता ने मिलके नक्की क्या करा, जितना पुराना कैपिटल था ओल्ड फॉर्म का नवा भी उतना ही रहेगा. तो जरा यहां ध्यान, व्हाट वाज द टोटल कैपिटल ऑफ ओल्ड फॉर्म? क्या से टोटल कैपिटल देखो ओल्ड फॉर्म का 1,00,000, 1,50,000 અને 1,00,000, 1,00,000, 1,50,000 અને 1,00,000. सो टोटल कितना था, 3,00,000. अब उन्होंने नक्की क्या करा, दीप और गीता ने, ये सेम टोटल रहेगा कैपिटल का ऑफ, द सेम टोटल कैपिटल रहेगा ऑफ न्यू फर्म. दैट इज हाउ मच, 3,50,000. इट विल बी द सेम. और ये जो सेम है वो कौन लेके आएंगे, दीप एंड गीता लेके आएंगे इन देयर न्यू प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो व्हिच इज 1:1. एंड दीप का अमाउंट है 1,75,000. गीता इज ऑल्सो 175. बेटा दीप का है 1,75,000, गीता का भी है कितना, 1,75,000. बेटा डन से
Done stay. Deep is again 1,75,000, गीता is 1,75,000. ये जो हमने अभी ढूंढा वो है क्या? क्लोजिंग बैलेंस ऑफ पार्टनर्स कैपिटल. पहले वर्किंग कर लो, फिर ये लिखता हूं मैं ये पार्टनर्स कैपिटल में. पहले वर्किंग्स कर लो. बेटा ये 1,75,000 क्या करे? There's a closing balance. So यहाँ पर closing balance लिख दो 1,75,000. And better now the most important step. Of the sum. We are concluding now the sum. What they have said कि after we write this closing balance, when we now make the total of capital account, so it may happen the debit side total can be more or a credit side total can be more. We don't know. तो जो भी साइड टोटल ज्यादा आ रहा है, ऑपोजिट साइड जब हम वो डिफरेंस लिखेंगे, वो डिफरेंस किस में लिखना है जरा चेक करो. डिफरेंस किस में लिखना है जरा चेक करो. We have to write it in current account. तो देखते हैं हम करंट अकाउंट में लिखेंगे. जहां तक मेरी नजर पड़ रही है जरा इधर ध्यान. इधर तो 1,08,000 क्रेडिट में, जबकि आनु क्लोजिंग बैलेंस 175 છે. તો ડેબિટ બાજુનો જ વધારે લાગે ટોટલ બંનેનું. અને ધ્યાનથી જોશો તો બંનેનું સેમ આવે છે. ચેક્સ કરો. 2 लाख. सर हमको 2-3 लाख दे दो तो ही हम पढ़ेंगे. So बेटा 2 लाख we'll write on the credit side. And बेटा then if I subtract this 1,08,092. અને बेटा ये जो डिफरेंस आला वो किसमें डाला? किसमें? करंट अकाउंट. सो यहां पर हम लिख देंगे बाय करंट अकाउंट. अब बेटा तुम एक मिस्टेक करोगे. ये कर तो लिया लेकिन एक और मिस्टेक करोगे. जरा यहां ध्यान. ये जो करंट अकाउंट आएगा 92 रेज योर हैंड. बैलेंस शीट में कहां जाएगा? बैलेंस शीट. ओहो हाँ ये सकांश कहां जाएगा? हाँ शी सेज लायबिलिटी. तुम क्या बोलते हो? वो लायबिलिटी बोल रही है. आकांक्षा लायबिलिटी में कैसे जाएगा? क्रेडिट साइड से, so liability has credit card. बेटा अभी तक हमने कंसेप्ट सीखा ही नहीं है ध्यान से. बेटा डेबिट साइड નું ટોટલ વધારે આવ્યું અને એ મૂક્યા પછી આજે બેલેન્સ આવ્યું. એ કયું બેલેન્સ છે? ડેબિટ બેલેન્સ છે. જે સાઈડ નું ટોટલ વધારે હોય અને પછી જે બેલેન્સ આવે એ સાઈડ નું જ બેલેન્સ છે. ડેબિટ બેલેન્સ. सो बेटा डेबिट बैलेंस वेयर डू वी शो? और मैंने एक ट्रिक भी तुमको बताई थी ना यार. हाँ तुम बेटा अपने हाथों का इस्तेमाल नहीं कर रहे हो. इधर क्लोजिंग बैलेंस लेफ्ट में है तो बैलेंस शीट में भी
લેફ્ટ में ઉતરેગા અને કરંટ અહીંયા રાઈટ માં છે તો અહીંયા પછી હાથ જોતી વખતે ડેબિટ ક્રેડિટ નહીં જોવાનું હા હાથની સાઈડ જ જોવાની सोचो तुम्हारे आंसर लाने के लिए मेरे को किस हद तक गिरना पड़ रहा है कंसेप्ट से डिविएट होके कहां कहां जाना पड़ रहा है खाली एक आंसर बैलेंस शीट टैली करने अच्छा पहले ये लायबिलिटीज में कैपिटल लिख लो दीप अने गीता 1,75,1,75 અને करंट अकाउंट बेटा हो ना लो असेट में आएगा 92 अरे बेटा कैश एंड बैंक में तो बेटा बोड़ी नहीं हुई यार एक ट्रांजैक्शन नहीं आया अच्छा है ना सर So बेटा write down that cash balance कितना है cash balance 22 the balance sheet is getting tallied at 6,22 the balance sheet is getting tallied at 6,22 अरे हास के नाज पक्काज बेटा कौन सी चीज कहां जा रही है कुछ समझ में आ रही है